Good morning students, how are you? I am Nisha Tak from Saraswati Group of Education. Children, you already know that your S7 exams are going to start very soon. So, this is our revision session for S7 exams. And in this session, we will revise chapter number 1, 2 and 3. Okay, so children, first of all, let us begin with chapter number 1, which is pre-number concepts. In that, we have already learned about spatial, description and quality understanding. Sorry, not quality, quantity understanding. Okay, now what is spatial understanding? Let me give you a quick recap. Spatial means top bottom, inside outside, near far, on under, above below and before after. These all comes in spatial understanding. And what comes in description understanding? Bigger, smaller, longer, shorter, taller, shorter, heavier and light. These all comes in description understanding. And in quantity understanding, only one thing, more or less, right? These all are things related to chapter number 1. Now based on that, children, according to our paper style, I have taken few examples on the board so that you come to know how to write the answers in exams. Okay. So the first question is MCQ. MCQ means multiple choice questions. You will be given 3 to 4 options and you have to select which option is the correct option. Okay. The first is, which animal is short in height? Height में कौन सा animal short होता है? A cat, B dog, C mouse. Think कौन सा animal short होता है सबसे? Yes, the answer is C, mouse. So what you will do? You will give right to mouse, right? Now second is, the elephant is dash and ant is light. तो इसमें ये जो डैश है वो हमको फिल करना है. तो एलिफेंट क्या होता है? इसमें बोला है एंट लाइट है, तो एलिफेंट क्या होगा? ए टॉप, बी इनसाइड, सी हैवी. व्हाट विल बी द आंसर? सी हैवी. राइट. सो विल टेक सी हैवी बिकॉज यहाँ पे क्या मैच करेगा? एलिफेंट इज हैवी देन एंट. और नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैंक्स. अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी और उसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे हेल्प बॉक्स में. आपको क्या करना है? वो चारों हेल्प बॉक्स में जो आंसर दिए गए हो, 4 या 3, उसमें से जो राइट ब्लैंक के लिए जो राइट आंसर है वही आपको सिलेक्ट करना है. राइट. लेट मी शो यू ऑन द बोर्ड ऑल्सो. फर्स्ट इज, यहाँ पे आप देख रहे हो 3 हेल्प बॉक्सेस दिए गए हैं आपको. 3 आंसर्स दिए गए हैं हेल्प बॉक्स में. A inside, B top, C taller. अब ये क्वेश्चन के साथ इन तीनों में से कोई भी एक आंसर राइट होगा, तो वो हमको A, B या C को टिक करना है. चलो. फर्स्ट इज, द बॉय इज एट डैश एंड द गर्ल इज स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द ट्री. इट इज वेरी इजी. आई नो यू अंडरस्टूड बाय माई स्पीकिंग ओनली. द बॉय इज एट, yes, it is at top and the girl is at bottom. So what will be the answer? B, top. तो यहाँ पे B है तो मैं किधर टिक करूंगी? A को करूंगी? No. किसको करूंगी? I will take B. I have to take B. Okay. Third is, fruits are kept dash the refrigerator. Fruits are kept dash the refrigerator. Fruits, refrigerator, dash. इसका मीनिंग क्या होता है? अब हमने ऑलरेडी हमारा आंसर बी हो गया है, तो ए और सी में से एक होगा. तो क्या होगा? फ्रूट्स आर केप्ट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रूट्स आर केप्ट टॉलर द रेफ्रिजरेटर. क्या आंसर आएगा? यस, यू कैन अंडरस्टैंड. फ्रूट्स आर केप्ट इनसाइड, तो इनसाइड का क्या आएगा इसमें? ए. राइट. अब थर्ड कौन सा है? माई फादर इज डैश देन मी. मतलब अब एक ऑप्शन बचा, ए और बी तो ऑलरेडी हो गए, तो क्या आंसर आएगा? माई फादर इज taller than me, right? So what will be the answer?
सी। सो आपने देखा ये हेल्प बॉक्स में जो भी आपको आंसर दिए गए थे वो तीनों के तीनों 3 क्वेश्चंस में मैच हो गए। एक में बी आया, एक में ए आया और एक में सी आया, राइट? सो दिस वे you will be given help box and you have to find out the right word for the blank. Okay, next is question number 3, true or false. अब आपको पता ही है true मतलब right, false मतलब wrong. तो आपको yes, right या no, wrong, no, उसमें से एक ही आंसर सिलेक्ट करना है. Okay, first is ant smaller than giraffe? ant होती है वो जिराफ से स्मॉल होती है. Yes, it is right. तो हम लोग किसको आंसर देंगे? True, right? Second is cat always runs after mouse. Cat हमेशा माउस के पीछे पीछे दौड़ती है कि नहीं? Yes, because उसको माउस को खाना होता है, पकड़ना होता है. So is this statement true? Cat always runs after mouse. ये सही है? Yes, the answer is true, right? So this was a recap of chapter number 1. और ये ऐसा नहीं है कि यही टाइप के क्वेश्चन, मैं इसमें से और भी कुछ पूछ सकती हूँ कि लाइक द बॉय इज डैश द कबोर्ड, द बॉय इज इनसाइड द कबोर्ड, ऐसा भी हो सकता है. कुछ भी इस टाइप के क्वेश्चंस में पूछ सकती हूँ. ओके, नाउ दिस वाज फर्स्ट चैप्टर. नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 2. अब चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? इट वाज नंबर्स अप टू 9 और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? काउंटिंग, नंबर्स काउंट करने पड़े थे. देन नंबर नेम्स वी हैव लर्न. देन एडिशन वी हैव लर्न. कैसे एडिशन सीखा था? काउंटिंग फॉरवर्ड, 1 मोर देन, 2 मोर देन, वो सब एडिशन में सीखा था ना. एंड सब्ट्रैक्शन, व्हाट वी लर्न इन सब्ट्रैक्शन? बैकवर्ड काउंटिंग, काउंटिंग पीछे काउंट करना, राइट? दैट वाज वी लर्न इन सब्ट्रैक्शन. एंड कंपेयरिंग नंबर्स, उसमें हमने क्या सीखा था? 2 नंबर्स कंपेयर कैसे करते हैं कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, या मोर देन 2 नंबर्स हो उनको कैसे कंपेयर करते हैं, कौन से इक्वल्स टू है, राइट? सो दीज आर ऑल द थिंग्स वी लर्नड इन चैप्टर नंबर 2. नाउ बेस्ड ऑन दैट लेट अस टेक अप सम एग्जांपल्स. ओके, सो द फर्स्ट इज 1 मोर देन 5 इज, इसका मतलब क्या हुआ? 5 से 1 मोर क्या आता है? 5 plus 1, तो क्या आएगा? 6. So what will be the answer? A, no. B, no. C is 6. So we will mark a tick to 6. अब सेकंड क्वेश्चन आप देखो, 6 ग्रेटर देन, ये कौन सी साइन है? ग्रेटर देन. 6 ग्रेटर देन डैश, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें से किसी एक नंबर के साथ 6 ग्रेटर देन है, 6 बड़ा है. तो 6 इज ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा है? नो. 6 is greater than 3. Yes, this can be an answer. और third option, 6 is greater than 8. No. So answer क्या आया? Greater than 3. So whom we will take? B. Right? So this is 6 greater than 3. Similarly, moving on to third question, 8-7. अब इसका क्या मीनिंग हुआ? 8 is greater than 7, 8 is equals to 7 और 8 is less than 7. क्या हुआ? Yes, 8 is greater than. तो कौन सी साइन आएगी? greater than की. So greater than कौन सा है? A. So we will mark a tick against A. Next question, blanks. Again जैसे मैंने आपको यहाँ पे blanks दिखाई थी वैसे ही यहाँ पे भी आपको एक हेल्प बॉक्स होगा, राइट? अब उसमें फर्स्ट है काउंट द स्टार्स. हमने ये चैप्टर में काउंटिंग पढ़ा था. सो यू हैव टू काउंट द स्टार्स एंड टेल हाउ मेनी आर दे. 1, 2, 3, 4. तो 4 कहाँ पे है आंसर? A, नो. B, नो. C. तो कौन सा आंसर आएगा? C, राइट? सिमिलरली सेकेंड, नंबर नेम फॉर 2 इज, अब आपको इसके लिए नंबर नेम्स आने कंपल्सरी है. तो 2 की नंबर नेम क्या हुआ? TWO, which is the answer? A, right? Because A is TWO. अगर स्पेलिंग्स नहीं आएगी, नंबर नेम्स नहीं आएंगे तो कई क्वेश्चंस में हो सकता है मैं नंबर नेम्स के थ्रू आपको क्वेश्चंस पूछूं, पर अगर आपको नंबर नेम्स नहीं आएंगे तो आपको क्वेश्चन भी समझ नहीं आएगा. सो रिमेम्बर दैट ऑलवेज
It is very much necessary to learn and remember number names also. Okay. Now moving on to third question. 2 stars, you can see here 2 stars plus 1 star equals to, again यहाँ पे भी काउंटिंग है और एडिशन है. 2 plus 1 कितने हुए? Think 2 and 1, it makes 3. So what will be the answer? Where is 3? It is B. So यहाँ पे क्या टिक करूंगी? B. यहाँ पे भी आपने देखा एक में C आया, एक में A आया और एक में B आया, राइट? सो टोटल 3 क्वेश्चंस ऑफ ब्लैंक्स हमने कवर किए. अब इसी टाइप में मैं ट्रू और फॉल्स भी पूछ सकती हूँ. तो वो किस टाइप के हो सकते हैं? हमने इसमें ऑलरेडी पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग जीरो. अगर आप जीरो किसी भी नंबर के साथ ऐड करोगे तो यू विल गेट द नंबर इटसेल्फ. जीरो नहीं मिलेगा, जो नंबर ऐड करते हो वही मिलेगा. सो यहाँ पे क्वेश्चन है 0 + 4 = 4. ट्रू? यस, बिकॉज जीरो के साथ जो ऐड करते हैं वही नंबर मिलता है. इट इज ट्रू. तो व्हाट आई विल राइट? यहाँ पे ए लिखना भूल गई. यस, आंसर इज ट्रू. सेकेंड इज 9 is smallest 1 digit number. थिंक करो, 1 digit नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से. और 9 उसमें सबसे छोटा है? नो, 9 is the biggest, सबसे बड़ा 1 digit नंबर है. तो ये क्या होगा? फॉल्स, बिकॉज इसमें तो पूछा है 9 स्मॉलर है. तो नहीं, तो क्या आंसर आएगा? फॉल्स. ओके, सो दिस इज अ रिकैप ऑफ चैप्टर नंबर 2. Now, based on this, chapter number 3. Now, in chapter number 3, children, the name is addition and subtraction up to 9. अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? इसमें भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही पढ़ा है, राइट? नंबर लाइन पे सीखा, वर्टिकल एडिशन सीखा, वर्टिकल सब्ट्रैक्शन सीखा, स्टोरी सम्स, एडिंग 3 digit नंबर. देन वी ऑल्सो लर्नड ऑर्डर इन एडिशन. ओके, ये सारी चीजें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी थी, राइट? नाउ बेस्ड ऑन दैट सम एमसीक्यूज. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ एडिंग ऑन अ नंबर लाइन, अगर आप नंबर लाइन पे ऐड करना स्टार्ट करो, यू स्टार्ट विथ 3 एंड रीच एट 6. 3 से स्टार्ट करते हो नंबर लाइन पे और आप 6 पर पहुंचते हो. इमेजिन अ नंबर लाइन, ठीक है? 3 आप नंबर लाइन पे इमेजिन करो और वहां से आप 6 तक पहुंचते हो नंबर लाइन पे, ठीक है? हाउ मेनी जम्प्स डू यू टेक टू रीच एट 6? 3 से 6 तक पहुंचने के लिए हाउ मेनी नंबर्स यू आर, हाउ मेनी जम्प्स यू आर टेकिंग? यस, व्हाट विल बी द आंसर? 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6. तो कितने जम्प्स लिए? 3 जम्प्स लिए. तो आंसर क्या आएगा? 3. सो कौन सा टिक करूंगी? सी, राइट? इस टाइप के क्वेश्चंस में भी एग्जाम में पूछ सकती हूँ. ओके, अब नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज करेक्ट. अब क्या पूछा है? ये आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कौन सा राइट है? चलो, 4 + 3 = 7. चेक करो, 4 में 3 डालो, 5, 6, 7. यस, ये तो राइट निकला. Then 4 + 4 = 5. 4 on mind, 4 in fingers. Calculate करो, 5, 6, 7, 8. तो 4 + 4 तो 8 मिला. तो यहाँ पे 5 है, तो ये राइट आंसर तो नहीं हो सकता. एंड थर्ड इज 4 + 2 = 6. 4 on mind, 2 in fingers. 4 के बाद 5, 6. तो 4 + 2 तो 6 आया. यहाँ पे लिखा गया है 4 + 2 8. So this is not right. This is also not right. And this is right, क्योंकि 4 + 3 हमने 7 किया. So the answer is this, right? Next is ऐसे टाइप के एग्जाम्स में भी आ सकते हैं because these are all related to addition, right? Next is Rima has bought 6 dresses. रीमा ने कितने ड्रेसेस लिए थे? 6. She gave 2 dresses to her friend. How many dresses she gave? 2. How many dresses are left now? Think. Rima gave 2 dresses. Rima had 6. उसमें से उसने 2 दे दी. 1, 2. तो अब कितनी बची? 1, 2, 3, 4. So what is the right answer? 4.
So where is 4? It's in B. See, this is a story sum of subtraction. तो ऐसे story sums भी आपको आ सकते हैं. Okay, now let me erase this portion and we'll move on to the second topic of chapter number 3. Children, now for question number 2, blanks. I have taken few questions this side. Okay, so based on addition and subtraction, the first question is 5 plus 1 plus 2. This question is about adding 3 digits together. हमने 3 digits भी सीखे थे, अलग अलग ऐड करना. It is the same thing. Okay, चलो 5 plus 1 6, 6 plus 2 7, 8. So what will be the answer? 8. Where is 8? A, no, B. So what will be the answer? B. Okay. Now moving on to second question. 9 minus 2. What it will be? See, I take 9 fingers minus 2. 1 and 1, 2. How many are left? These are 4, 5, 6, 7. So what will be the answer? 7. Which is the answer 7 in this? It's C. So I will take C. Last is 7 minus 7. You remember I have told कि जब भी आप सेम नंबर एक नंबर में से माइनस करते हो, जो नंबर दिया गया है उसी में से वही नंबर आप माइनस करते हो, तो आंसर हमेशा 0 आता है. राइट, माइनस में 0 आता है और एडिशन करोगे तो डबल हो जाता है. ओके, सो 7 minus 7 will be 0. So let us find out 0. It's A. So where we will take? Oh, I have forgotten to write A, B, C here. A, B, C. Okay. So where we will take? It's A. So I will take A as an answer. Right? So this way blanks can be asked. Okay. Third question is true or false. Same way जो first और second chapter के लिए हमने किए थे true or false. It's the same way. Okay. The first is 4 is the sum of 1 plus 4. Children, you remember हमने ये questions किए थे ऐसे कि कोई भी नंबर आपको दिए गए थे उसके अलग अलग वेज होते हैं सम के. सपोज 2 है तो 2 कैसे फॉर्म होता है? 1 plus 1 भी हो सकता है, 0 plus 2 भी हो सकता है. राइट, ये सारे हमने बुक में किए थे. सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने इसमें पूछा है that 4 is the sum of 1 plus 4. मतलब 4 आंसर आता है जब आप 1 plus 4 करते हो तो क्या आंसर आएगा? 1 plus 4 तो 5 आता है. तो ये राइट है. इज इट ट्रू? नो, देन इट इज फॉल्स. हमको क्या करना है? टिक ऑन बी. राइट. Similarly, second question, subtraction means putting things together. Subtraction का मीनिंग क्या हुआ? Putting things together, सब चीजों को इकट्ठा करते हो आप, subtraction हुआ? No, subtraction तो जो है उसमें से निकालना होता है. ये किसकी डेफिनेशन थी? This was about addition. Addition का मीनिंग होता है putting things together. यहाँ पे पूछा है subtraction का मीनिंग, तो आंसर क्या आएगा? No, it is false. So children, this will be false. और आपको पता होना चाहिए. सी, ये सारी डेफिनेशन भी मैं इस टाइप के एग्जाम्स में पूछ सकती हूँ कोई भी फॉर्म में. राइट, मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ. सब्ट्रैक्शन, एडिशन मीन्स पुटिंग थिंग्स टुगेदर, एडिशन मीन्स टेकिंग आउट थिंग्स. ऐसा कुछ भी ऑप्शंस में देकर पूछ सकती हूँ. ठीक है, तो इसके लिए आपको डेफिनेशंस आना भी बहुत जरूरी है. जो मैंने आपको CW में लिखा है वो सारा पोर्शन भी आपको रिफर करना है. ओके, एंड द लास्ट इज 1 less than 5 is 6. 1 less than 5 मतलब 5 में से एक कम, 1 लेस. तो 5 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगी, 1 निकाल दिया मैंने, तो कितने बचे मेरे पास? 4. तो यहाँ पे तो आंसर दिया गया है 6. तो ये राइट है? नो. सो व्हाट विल बी द आंसर? फॉल्स. राइट. सो दिस इज द वे यू विल हैव टू रिवाइज योर चैप्टर नंबर्स 1, 2, 3. और इसी टाइप के एग्जाम्स में भी इसी बेसिस पर क्वेश्चंस इसी फॉर्म में आपके पास आएंगे.
So children, be very careful and revise your work properly so that in exams आपको अच्छे मार्क्स आए. और रिमेम्बर, एग्जाम देने बैठो तब आपके पास एक रफ पेपर साथ में जरूर रखिएगा, बिकॉज ये सब कैलकुलेट करना है. आपको गूगल फॉर्म में एग्जाम आएगी तो उसके लिए एक पेपर चाहिए जिसमें आप रफ कैलकुलेशन करोगे और फिर ही आंसर आप एग्जाम में दोगे. Right children? Still you have any doubt? You can go through the video once again, और based on this I will post a worksheet जिसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे. So please solve it in your rough book. किसमें सॉल्व करोगे? You will solve it in your rough book, right? So children, I hope you enjoyed the session and we will be meeting back soon. Bye.